নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু লাইভ আৱাৰত জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অবশেষত 17 দিনৰ পাছত সন্ধান ওলাল সোনম ৰঘুবংশীৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজীপুৰৰ নন্দগঞ্জৰ এখন ধাবাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সোনমক ৰাজা ৰঘুবংশীৰ হত্যাৰ গোচৰত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সোনমক ৰাজাৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িতৰ গোচৰত মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা আন তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 23 মেৰ পৰা চেৰাপুঞ্জীত সন্ধানহীন হৈ আছিল সোনম আৰু ৰাজা ৰঘুবংশী ৰহস্যজনকভাৱে 2 জুনত চহৰৰ উমলাই ৰিয়াত আৰ্লিয়াং পাৰ্কিং লটৰ ৱেইছডং জলপ্ৰপাতৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছিল ৰাজা ৰঘুবংশীৰ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ কিন্তু নিৰুদ্দেশৰ 16 দিন পাছতো কোনো সন্ধান লাভ কৰা হোৱা নাছিল সোনম ৰঘুবংশীৰ 22 মেত হানিমুনৰ বাবে শিলঙলৈ আহিছিল ৰাজা ৰঘুবংশী আৰু সোনম মেঘালয় আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা হত্যাকাণ্ডৰ 17 দিন পাছত ইন্দোৰৰ ৰাজা ৰঘুবংশীৰ হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় মেঘালয় আৰক্ষীয়ে সোনম সহ 4 হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই একযোগে জনাইছে এই খবৰ ইপিনে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে হত্যাকাৰী সোনম ৰঘুবংশীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছে আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালৰ সৈতে ভিডিঅ' কলত কথা পাতিছিল সোনমে আনহাতে ৰাজাৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডত জড়িত আন এক অভিযুক্তক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে এয়া গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছৰ প্ৰথম আলোকচিত্ৰ নিউজ 18ৰ হাতত আমি দেখুৱাইছো এই দৃশ্য এই আলোকচিত্ৰ এয়া হৈছে সোনম ৰঘুবংশী উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজীপুৰৰ এখন ধাবাৰ পৰা সোনমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত এয়া প্ৰথমখন ফটো সোনম ৰঘুবংশীৰ যি নেকি সুপাৰী কিলাৰ লগত লৈ শিলঙলৈ হানিমুনলৈ আহি নিজৰ স্বামীক হত্যা কৰাৰ দৰে এই নৃশংস জঘন্য কাণ্ডত জড়িত থকাৰ এই বিস্ফোৰক তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে কেইবাটা ক্লু লাভ কৰিছিল আৰু সেই ক্লুৰ আধাৰত মেঘালয় আৰক্ষীয়ে বাৰে বাৰে দাবী কৰিছিল যে এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত কৰবাত কেনেবাকৈ সোনমৰ হাত থকাৰ কথা আৰু সেই কথা এই মুহূৰ্তত প্ৰমাণ হ'ল সেই কথা এই মুহূৰ্তত ওলাই পৰিল গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো সোনমৰ এয়া হৈছে প্ৰথমখন ফটো গাজীপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সোনম ৰঘুবংশী এখন ধাবাৰ পৰা সোনমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সোনমক ধাবাৰ পৰা জালত পেলোৱা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে চহৰৰ মাওকমাত উদ্ধাৰ হৈছিল এটা কোলা ৰঙৰ ৰেইনকোট চেৰাপুঞ্জীৰ হোটেলৰ সিসি কেমেৰাত দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল সোনমে পৰিধান কৰি আছিল সেই ৰেইনকোটটো যিটো ৰেইনকোট যোৱা বুধবাৰে উদ্ধাৰ হৈছিল চহৰৰ মাওকমাত এয়া হৈছে সেই ৰেইনকোটটো আমি ইতিমধ্যে জনাইছো এই ৰেইনকোটৰ আধাৰত মেঘালয় আৰক্ষীয়ে তদন্তত এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেজ লগা এই ৰেইনকোটটো য'ত নেকি ৰাজা ৰঘুবংশীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ প্ৰায় 200 মিটাৰ নিলগত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পৰাই সিসি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল আৰু এই ৰেইনকোটটোৰ কিছু তথ্য আৰক্ষীয়ে উদ্ঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তাৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই তদন্ত চলাই এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আমি দেখুৱাইছো সেই ৰঙা আৰু কোলা ৰঙৰ সেই ৰেইনকোটটো চহৰৰ মাওকমাত উদ্ধাৰ হৈছিল কোলা ৰঙৰ ৰেইনকোটটো চেৰাপুঞ্জীৰ হোটেলৰ সিসিটিভিত দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল সোনমে পৰিধান কৰি আছিল এই বিশেষ ৰেইনকোটটো যিটো ৰেইনকোট যোৱা বুধবাৰে উদ্ধাৰ হৈছিল চহৰৰ মাওকমাত মেঘালয় আৰক্ষীয়ে কেইবাটাও ক্লু কেইবাটাও তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বাৰে বাৰে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছিল যে এই ঘটনাত কোনো লোকেলৰ হাত নাই কোনো স্থানীয় লোকৰ কোনো হাত নাই কোনো অপহৰণ বা ডকাইতি কাণ্ড ইয়াৰ লগত জড়িত নাই কাৰণ স্থানীয় গাইডৰ ভাষ্যৰ পৰা বহুখিনি বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰা হৈছিল এলবাৰ্ট পিডে নামৰ মেঘালয়ৰ স্থানীয় গাইড এগৰাকীয়ে বহুখিনি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল কেনেদৰে তিনিজন যুৱকক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ৰাজা আৰু সোনমৰ সৈতে সেই কথা গাইডৰ ভাষ্যৰ পৰা পোহৰলৈ আহিছিল মেঘালয়ৰ স্থানীয় গাইড এলবাৰ্টে পিডেৰ ভাষ্যৰ পৰা মেঘালয় আৰক্ষীয়ে বহুখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰি সেই তথ্যৰ আধাৰত অভিযান চলাইছিল আৰু তাৰ পিছত এই বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ আহিল যে এই ঘটনাৰ আঁৰত সোনম ৰঘুবংশীৰ হাত আছে সোনম ৰঘুবংশীয়ে সুপাৰী কিলাৰৰ হতুৱাই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে ৰাজা ৰঘুবংশীৰ 23 মেত নংৰিয়াটৰ ডাবল ডেকাৰ ৰুট দলঙৰ মূল প্ৰৱেশ পথত 3জন পৰ্যটকৰ সৈতে ৰাজা ৰঘুবংশী আৰু সোনম ৰঘুবংশীক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল মাউলিয়াখিয়াত গাঁৱৰ স্থানীয় গাইড এলবাৰ্ট পিডে তিনিওৰে সৈতে বন্ধুত্বসুলভ
ৰাজা ৰঘুবংশীয়ে বন্ধুত্বসুলভভাৱে ৰাজা ৰঘুবংশীয়ে কথা পাতিছিল বুলি উল্লেখ কৰে এলবাৰ্ট পিডেই। আৰু কেনেকৈ মেঘালয় আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল সফলতা? ৰাজা ৰঘুবংশীক হত্যা কৰা দাখন মেঘালয়ৰ নাছিল। ট্ৰেকিঙলৈ যাওঁতে সোনম ৰঘুবংশীয়ে হোটেলৰ বেগত এৰি থৈ গৈছিল মংগলসূত্ৰ আৰু ভৰিৰ আঙঠি। চেৰাপুঞ্জীত আন 3জন যুৱকৰ সৈতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল সোনম আৰু ৰাজাক। টুৰিষ্ট গাইডৰ কথাত এই কথা স্পষ্ট হৈছিল যে সোনমৰে 3 যুৱকৰ ঘনিষ্ঠতাৰ কথা। নিৰাপদে মেঘালয়ৰ পৰা ওলাই গৈছিল সোনম ৰঘুবংশী। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আমি কেনেকৈ মেঘালয় আৰক্ষীয়ে এই সফলতা লাভ কৰিছিল। কেইবাটাও যিহেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্লু মহানগৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল আৰু সেই ক্লুৰ আধাৰত অভিযান চলাইছিল, তদন্ত চলাইছিল। আৰু এই বিশেষভাৱে 5টা ক্লুৰ কথা আমি জনাইছোঁ, বিশেষভাৱে 5টা তথ্য প্ৰমাণৰ কথা আমি জনাইছোঁ, য'ত নেকি ৰাজা ৰঘুবংশীক হত্যা কৰা যিখন দা ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই দাখন মেঘালয়ৰ দা নাছিল বুলি মেঘালয় আৰক্ষী নিশ্চিত হৈছিল। লগতে ট্ৰেকিঙলৈ যোৱাৰ সময়ত সোনম ৰঘুবংশীয়ে হোটেলতে বেগত এৰি থৈ গৈছিল মংগলসূত্ৰ আৰু ভৰিৰ আঙঠি। আনহাতে চেৰাপুঞ্জীত আন 3জন যুৱকৰ সৈতে দেখা গৈছিল সোনম আৰু ৰাজাক। টুৰিষ্ট গাইডৰ কথাত স্পষ্ট হৈছিল সোনমৰে 3 যুৱকৰ ঘনিষ্ঠতাৰ কথা। নিৰাপদে মেঘালয়ৰ পৰা ওলাই গৈছিল সোনম ৰঘুবংশী। বাইছ মে'ৰ পৰা এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতি, য'ত নেকি মধ্যপ্ৰদেশৰ 2গৰাকীকৈ সাংসদে মেঘালয়ত বাহৰ পাতি এই ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ বুজ লৈছিল। মেঘালয় আৰক্ষীক বিভিন্ন ধৰণৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল আৰু মেঘালয় আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট কৰি দিছিল যে এই ঘটনাত খাচী বা স্থানীয় কোনো লোক জড়িত নহয়। এই ঘটনাক হত্যাকাণ্ডক ডকাইতি অপহৰণৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল এই গেংটোৱে, সোনম ৰঘুবংশী আৰু তেওঁৰ সেই গেংটোৱে। বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ হানিমুনলৈ আহি এই ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত হ'ল। হানিমুন ট্ৰেজেডিৰ এই ধৰণৰ এটা বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত, যিয়ে সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে। সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি যোৱা এই নাৰকীয় হত্যাকাণ্ডৰ কালপ্ৰিট হৈছে এয়া সোনম ৰঘুবংশী। সোনম ৰঘুবংশীৰ পিতৃ মাতৃৰ ভাষ্য আছে, আমি সেই ভাষ্য আগবঢ়াই লৈছোঁ। दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। आप तो ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा। हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है? मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग।
धन्यवाद है जो मिल गई है तो, लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस धन्यवाद मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ बस। পিতৃ মাতৃৰ ভাষ্য। পিতৃয়ে দাবী কৰিছে যে তেওঁৰ কন্যা এই কাণ্ডত কোনোপধ্যে জড়িত নহয়। এয়া মেঘালয় আৰক্ষীৰ মনে সজা কাহিনী হিচাপে অভিযোগ উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে সোনমৰ পিতৃয়ে, কিন্তু মেঘালয় আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই ঘটনাত সোনম ৰঘুবংশীৰ হাত আছে। মেঘালয়ৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক गोविंद शर्मा सहित संयुक्त हो। गोविंद, ये बात सामने आ गया कि सोनम को डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, जो मेघालय पुलिस ने बार बार ये दावा कर रहा था कि इस हादसे में कहीं ना कहीं सोनम का हाथ है। तो इस वक्त कनरत संगमा ने भी एक्स हैंडल में यही बात बताया कि मेघालय पुलिस का ये बहुत ही बड़ा सफलता हासिल हुआ है। जी, बात सही है। मेघालय पुलिस का सबसे बड़ा सफलता है, जो कि मेघालय के ऊपर कलंक जो लगा था उसको मिट चुका है और प्रज्ञा है। और प्रज्ञा तो आखिर सोनम रघुवंशी गाजियापुर में गई कैसे, यूपी में गई कैसे यहाँ से। और दूसरी नंबर बात है कि वो तो अब सोनम रघुवंशी जी ही बता कि आखिर में हुआ क्या था, क्योंकि स्पॉट डेट पर तो मैं नहीं था, आप नहीं थे, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी ही थे। जी, बाकी जो तीन लोगों के बारे में जो टूरिस्ट गाइड, जो लोकल टूरिस्ट गाइड ने बताया था, वही बड़ा सबूत साबित हुआ है। हाँ, टूरिस्ट जो बताया तो साबित हुआ। आखिर मुझे एक चीज समझ में, टूरिस्ट बताया उन्हें बहुत अच्छी बात है, टूरिस्ट बताया, लेकिन इतने दिन से बात जब चल रही थी उसमें भी तो टूरिस्ट को बताना चाहिए था, ये भी तो नहीं हो रहा था। अभी जब होम मिनिस्टर जी से जब बात हुआ, जब सीबीआई इंक्वायरी लगी, उसके बाद में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी निकलने लगा। जी गोविंद, मेघालय डीजीपी ने कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बात पूरी तरह बताएगा, तो कब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा? सर 10:30 से 11 बजे के करीब में ये मेघालय डीजीपी नहीं रहेंगे वहाँ। मेघालय डीजीपी की तरफ से मुझे सूत्रों से इनपुट मिली है कि होम मिनिस्टर और यहाँ के जो एसपी साहब है वो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के बाद तो पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या था। जी, यही बड़ा सवाल आपने भी बताया कि यही बड़ा सवाल उठ रहा है कि कैसे मतलब मेघालय से भाग निकला है सोनम, और जो घातक है कैसे निकल चुका है मेघालय से, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर में यहाँ से वो वहां पर जाई कैसे, या किसी अफेयर होगा या मध्य प्रदेश किसी लड़का के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का सूचना मिल रहा था। मैं शुरू से लेकर हम तक यही केस का स्टडी किया, तो इसमें हर तरह का, कहीं लड़की कोई लड़का के साथ अफेयर तो नहीं था, कोई मध्य प्रदेश से इन लोगों का फॉलो तो नहीं कर रहा था, क्योंकि मेघालय में ऐसी घटना ना पहली बार आया, मेरा भी पहली बार ये घटना देखने को मिला है। ऐसा केस मैं भी कभी देखा नहीं था कि ये केस ऐसा होगा। ऊपर से सोनम की जो फादर है उन्होंने बताया कि उनका बेटी बेगुनाह है, उल्टा मेघालय पुलिस के ऊपर आरोप लगाया गया है। सर देखा कि बेगुनाह, एक चीज मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि मेघालय से गाजीपुर कितने दूरी, कम से कम 1200 साढ़े 1200 किलोमीटर दूर है, वहां पर गई कैसे, अकेला हो जाए गई कैसे, फिर चारों मोबाइल कैसे बंद हो गया। और दूसरी में कहानी, अगर वो कहीं गई होगी तो सिटी से ही गई होगी, या तो से गई होगी या कहीं से गई होगी, किसी से मोबाइल के घर पर भी तो कांटेक्ट कर सकती थी, पुलिस में भी तो कांटेक्ट कर सकती थी, कोई तो कांटेक्ट कर सकती थी। इतना तो कोई बेवकूफ नहीं है कि बुर्बक का वो भी कांटेक्ट कर लेता है। जी गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमें देने के लिए। और एनेदरे मेघालयत जी कलंकर दाग सानिছিল এই ঘটনাৰ জৰিয়তে সেই কলংক ইতিমধ্যে মোচন কৰিবলৈ
সেই কলংক ইতিমধ্যে মোচন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে। আমি জনাই আছোঁ যে এই ঘটনাৰ বিশেষ সফলতা মেঘালয় আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে লাভ কৰিলে তাৰ ভিতৰত অন্যতম এটা তথ্য আছিল, এটা ক্লু আছিল যে স্থানীয় গাইডগৰাকীৰ ভাষ্য। মেঘালয়ৰ স্থানীয় গাইড এলবাৰ্ট পিডেই 23 মেত নংগ্ৰিয়াটৰ ডাবল ডেকাৰ ৰোড দলঙৰ মূল প্ৰৱেশ পথত দেখা পাইছিল ৰাজা ৰঘুবংশী আৰু সোনম ৰঘুবংশীক। আৰু সেই সময়ত দোকানত সামগ্ৰী কিনি আছিল ৰাজাই আৰু সোনমে 3 হিন্দীভাষী যুৱকৰ সৈতে কথা পাতি আছিল। তিনিওৰে সৈতে বন্ধুত্বসুলভভাৱে কথা পাতি আছিল বুলি জানিবলৈ দিছিল মাউলিয়াখাট গাঁৱৰ স্থানীয় গাইড এলবাৰ্ট পিডেই। এলবাৰ্টৰ তথ্যৰ ভিত্তিতে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে সেই 3 হিন্দীভাষী যুৱকৰ সন্ধানত কৰিছিল তদন্ত। এয়া হৈছে গাইডজনৰ ফটো, এয়া হৈছে স্থানীয় টুৰিষ্ট গাইডজনৰ ফটো। এই টুৰিষ্ট গাইড এলবাৰ্ট পিডেইৰ ভাষ্যৰ পৰা সকলো কথা আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট হৈছিল যে এই ঘটনাত কিবা নহয় কিবা এটা ৰহস্য আছে। 3গৰাকী যুৱকৰ আবিৰ্ভাৱে সমগ্ৰ বিষয়টো গভীৰ ৰহস্যৰ মাজলৈ ঠেলি নিছিল আৰু যে এই ঘটনাত সোনমৰ লগত আৰু কেইবাগৰাকী সহযোগী আছিল সেই কথা নিশ্চিত হৈছিল মেঘালয় আৰক্ষী এলবাৰ্ট পিডেই এইগৰাকী স্থানীয় টুৰিষ্ট গাইডৰ ভাষ্যৰ পৰাই। আৰু তাৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাইছিল, জোৰদাৰ অভিযান চলাইছিল আৰু বিগত 7 দিনত তদন্তই এটা বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। 23 মেত নংগ্ৰিয়াটৰ ডাবল ডেকাৰ ৰোড দলঙৰ মূল প্ৰৱেশ পথত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ৰাজা ৰঘুবংশী আৰু সোনম ৰঘুবংশীক। আৰু সেই সময়ত দোকানত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আছিল ৰাজাই আৰু সোনমে 3 হিন্দীভাষী যুৱকৰ সৈতে কথা পাতি আছিল। তিনিওৰে সৈতে বন্ধুত্বসুলভভাৱে কথা পাতিছিল বুলিও জানিবলৈ দিয়ে মাউলাখিয়াট গাঁৱৰ স্থানীয় গাইড এলবাৰ্ট পিডেই। আৰু এলবাৰ্টৰ এই তথ্যৰ ভিত্তিতে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে 3 হিন্দীভাষী যুৱকৰ সন্ধানত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল। নিউজ 18ৰ পোহৰলৈ আহিছে, নিউজ 18ৰ হাতলৈ আহিছে সোনমে আশ্ৰয় লোৱা ধাবাৰ দৃশ্য। নিশা প্ৰায় 1 বজাত ধাবাত প্ৰৱেশ কৰিছিল সোনমে আৰু সেই সময়তে ধাবাৰ কৰ্মচাৰীজনৰ পৰা ঘৰলৈ ফোন কৰাৰ বাবে মোবাইলটো বিচাৰিছিল। এয়া হৈছে কাশী ছাই, এইখন ধাবা আমি দেখুৱাইছোঁ। কাশী ছাই নামৰ এই ধাবাখনত নিশা 1 বজাত প্ৰৱেশ কৰিছিল সোনম ৰঘুবংশীয়ে। ধাবাখনৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা মোবাইলটো লৈ সোনমে ভাতৃৰ সৈতে ভিডিঅ' কল কৰিছিল। সেই কথা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই ধাবাখনৰ পৰাই সোনমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এইখনেই হৈছে সেই ধাবাখন, উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজীপুৰত থকা এই ধাবাখনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। तो सोनम ने वहाँ से वीडियो कॉलिंग करी। वीडियो कॉलिंग करने के बाद में कंफर्म हुआ हमारे को, तो हम लोगों ने यूपी पुलिस को फ़ोन लगाया गया है। यूपी पुलिस वहाँ पे आई और फिर सोनम को लेके गई वहाँ पे और वहाँ पे जाकर थाने में बैठी बाकायदा। इसमें कोई गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई थी और ना ही पुलिस ने सोनम ने सिलेंडर किया है। ये सारी चीज़ झूठी इसमें है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। और इसमें डीजीपी साहब जो कह रहा है इसके अंदर है तो सोनम रघुवंशी जो है इसमें हत्यारी है। तो हम लोग कह रहे हैं अभी सोनम रघुवंशी मिली नहीं है वहाँ पे है, और ये 4 हत्यारे जो है इन चारों से भी बातें सारी क्लियर हो नहीं पाई है। ये चारों लोग जब तक यहाँ पे सोनम के सामने नहीं बोल पाएंगे तब तो हम लोग इसको चीज़ों को मानने राजी नहीं है कि ये अभी सोनम की कोई भूमिका नहीं रही, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। देखिए अभी यूपी पुलिस जो है वहाँ सोनम है और 3 आरोपी जो है वो MP इंदौर में हैं। तो इन लोगों को जब तक सोनम के सामने आमने सब खड़ा नहीं किया जाएगा जब तक हम लोग माने राजी नहीं इसको। अच्छा, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हो, कि आप ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं था? हाँ, नहीं था। का कैसा व्यवहार था 11 मई के बाद जब शादी हुई? तो देखिए सोनम का व्यवहार इसमें अच्छा था, हमको इसमें अगर कोई डाउट नहीं लगा तो सोनम ऐसे कुछ कर सकती है। और हम लोग जब तक नहीं मानेंगे जब तक सोनम के मुँह से हम लोग सुन नहीं ले। इसलिए हम लोग जितने भी हम लोग मीडिया से हम चाहते हैं मीडिया के माध्यम से तो इसमें गलत अफवाह ना फैलाएं तो अच्छा है। क्योंकि बहुत से लोग इसमें कैसा कह रहे हैं तो उसमें सोनम ने सिलेंडर खुद ने किया है, तो सोनम को सिलेंडर करते कभी तो यूपी पुलिस के पास सोनम आगे कैसे पहुंची कि सोनम को हम लोग आगे पहुंचाया वहाँ पे, तो सोनम पुलिस खुद लेके गई है। ये 4 लोग कौन है मध्य प्रदेश के? अभी इसको लेकर आपकी बातचीत? अभी इसमें कोई जानकारी हमको मिली नहीं है और हमारी बातचीत इसमें कुछ कंफर्म हो नहीं पाई भी हाल है। और हम लोग भी जाके वहाँ पे थाने पे जाके जो है इसे कंफर्म करेंगे 4 लोग कौन थे। डीजीपी पुलिस से आपकी कोई बात हुई क्या? डीजीपी साहब से हमारी कोई बातचीत हो नहीं पाई है क्योंकि वहाँ पे जो SP साहब जो थे विवेक सिंह जी, उनको हम 4 दिन से डेली फ़ोन लगा रहे थे, उनने हमारा फ़ोन नहीं उठाया गया है। तो हम लोग तो पहले डरे हुए थे हमारा फ़ोन क्यों उठा रहा है। उसके बाद वहाँ पे मेघालय पुलिस जो है वहाँ पे कह रही थी 24 घंटे CM साहब कह रहे थे 24 घंटे वहाँ पुलिस लगी हुई है। तो वहाँ तो कल संडे बनाया लोगों ने, 24 घंटे से काम करा लोगों ने कल। एक सवाल और बताइए, ये शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी, बातचीत? शादी इनकी अरेंज मैरिज थी दोनों के। कैसे मुलाकात हुई दोनों परिवारों की? देखो दोनों परिवार की मुलाकात हमारी 4 महीने पहले हुई थी, शादी के 4 महीने पहले वो दोनों परिवार से हम लोग मिले। दोनों के बीच में अच्छी बातचीत चली हमारे लोगों के बीच में, और दोनों की पसंद से शादी कराई गई है और दोनों की अरेंज मैरिज है।
कोई नाम मरीज नहीं है। कोई शादी के पहले कुछ विवाद नहीं, ऐसा कुछ विवाद नहीं था दोनों बीच में, कोई विवाद नहीं था इसके अंदर। अच्छा, ये प्लानिंग किसने बनाई थी शिलोंग जाने की? ये दोनों के प्लानिंग थी इसके अंदर। और पहले कामाख्या देवी के दर्शन लेने हाँ। के लिए? जी। किसी ने और किसी तरह की कोई बातचीत हुई हो आपकी, जिन लोगों से पता लगाओ कि किसके संपर्क में थे? नहीं, हमारी किसी बातचीत किसी से हो नहीं पाई, किसके संपर्क में है, किसके संपर्क में ही है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं इस बारे में। अच्छा, इंदौर पुलिस से कोई संपर्क आपका हुआ है? इंदौर पुलिस के संपर्क में हम लोग थे शुरू से ही, और वहाँ के एसपी साहब जो उनके संपर्क में थे और डीएसपी साहब के संपर्क में थे क्राइम ब्रांच के, तो उन लोगों से हम बातचीत करते रहते इस बारे में। राजा हत्याकाণ্ডৰ মটিভ পোহৰলৈ আহিছে। পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে হত্যাৰ সন্দেহ ৰাজা ৰঘুবংশীক। ৰাজা কুশৱাহাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল। সোনমৰ 2 চুপাৰী কিলাৰৰ সহযোগত হত্যা কৰা হৈছিল ৰাজাক। মেঘালয় আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'ব স্বামী হন্তা সোনমক। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। হত্যাকাণ্ডৰ মটিভ এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে। ৰাজা হত্যাকাণ্ডৰ মটিভ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই এই হত্যাকাণ্ডৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ৰাজ কুশৱাহাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল। ৰাজ কুশৱাহ নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল। সোনমৰ 2 চুপাৰী কিলাৰৰ সহযোগত হত্যা কৰা হৈছিল ৰাজাক। মেঘালয় আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'ব স্বামী হন্তা সোনমক। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ ডেভেলপমেণ্ট, ডাঙৰ আপডেট আমি জনাইছোঁ। অৱশেষত মটিভ সন্মুখলৈ আহিছে। সেয়াই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰেমৰ এংগল এটা জড়িত থাকিব পাৰে এই হত্যাকাণ্ডত, আৰু সেই পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই হত্যাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ৰাজ কুশৱাহ নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল। সোনমৰ 2 চুপাৰী কিলাৰৰ সহযোগত হত্যা কৰা হৈছিল ৰাজাক। ইতিমধ্যে সোনমৰ পৰিয়ালে কৈছে যে দুটা পৰিয়ালৰ মতামতৰ ভিত্তিত এৰেঞ্জ মেৰেজ হৈছিল দুয়োৰে মাজত। লাভ মেৰেজ নাছিল, সেয়া এৰেঞ্জ মেৰেজ আছিল। আৰু তাৰপিছত এই এটা এংগল এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে যে পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে হত্যা কৰা হ'ল ৰাজা ৰঘুবংশীক। ৰাজ কুশৱাহাৰ নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে সোনমৰ আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। মেঘালয় আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'ব স্বামী হন্তা সোনমক। सीबीआई चाहिए माने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग। क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको सोनम को फंसा रहे हैं। क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कि पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा। थाना नहीं बचेगा वहाँ का। जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं वो थाने को पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं, और वो लोग ये काम करवाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग आए, 50 आदमी आए, वो क्या बोलते हैं, वहाँ के आदमी उसको हादसा करके खत्म कर देती है वहाँ की पुलिस। वो तो यहाँ से जो मीडिया लगा हुआ है, ये आप लोगों का सब पूरा जो जितना मीडिया है वो मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए ये केस बाहर आ गया है। और अगर ये मीडिया वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री भी निराधार झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है तो फिर उसकी भी जांच होना चाहिए, और वो भी सीबीआई जांच करेगी। ठीक है ना, मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री निराधार झूठ बोल रहा है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए, और अमित शाह जी में सीबीआई भेज दें जल्दी जल्दी। আৰু নিউজ 18ত আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ পোহৰলৈ আহিছে আশ্ৰয় লোৱা দৃশ্য, লগতে আমি ভাষ্যও আগবঢ়াই আছোঁ। আমি সেই ধাবাখনৰ দৃশ্য আকৌ এবাৰ আগবঢ়াইছোঁ। এইখনেই হৈছে ধাবা কাশী চাই নামৰ। এই ধাবাখনত নিশা 1 বজাত প্ৰৱেশ কৰিছিল সোনম ৰঘুবংশীয়ে, আৰু তাৰপিছত নিশা 1 বজাত সোনম ৰঘুবংশীয়ে কৰ্মচাৰীৰ পৰা মোবাইলটো বিচাৰিছিল ঘৰত ফোন কৰিবৰ বাবে, আৰু সেই ফোনেৰে ভাতৃ বিপিন ৰঘুবংশীক ফোন কৰিছিল, ভিডিঅ' কল কৰিছিল। তাৰপিছতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত নিশা 2 বজাত ধাবাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় সোনম ৰঘুবংশীক। 1 बजे का बात है, दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण। अच्छा, तो ये अकेले थी कि और लोग भी थे? नहीं, अकेली थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी?
यहाँ तो इधर से रहे थे, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताइए, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगे थे। मोबाइल मांगे थे, नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? इनका उनके फैमिली का नंबर है। বিপিন ৰঘুবংশীৰ সৈতে আমাৰ এডিটৰ ইনপুট নিলয় ভট্টাচাৰ্যই এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ আগবঢ়াইছিল আৰু সেই টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত কি কৈছিল আমাৰ ইনপুট এডিটৰ নিলয় ভট্টাচাৰ্যক বিপিন ৰঘুবংশীয়ে আমি আগবঢ়াইছোঁ সেই এক্সক্লুচিভ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ। जी, मैं निलय बता रहा था न्यूज 18 से। न्यूज 18 में आसाम नॉर्थ ईस्ट से हूँ। हाँ हाँ जी, ये अभी जो पता चला है कि सोनम रघुवंशी आत्मसमर्पण किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी दे पाते हैं, आपके पास जो भी खबर है। आत्मसमर्पण सोनम ने नहीं किया है। सोनम के लिए हम लोगों ने फोन लगाया यूपी पुलिस को। यूपी पुलिस वहाँ पे पहुंची, उसको वहाँ पे सेफ रखा है, उसको लेके गई है। सोनम पकड़ी नहीं गई है। सोनम को हमने फोन लगा के बोला है, तो सोनम को पुलिस लेके गई वहाँ से। कोई पुलिस ने ढूंढना नहीं है, कोई आत्मसमर्पण नहीं किया उसने है, ये चीज क्लियर है। तो लेकिन बात है खबरें ना चले तो अच्छी है। जी बात है, लेकिन बात है कि सोनम मतलब चेरापूंजी से आके मध्य प्रदेश कैसे पहुंची उसके बाद, आपको क्या लगता है? वो सोनम बता पाएगी इस बारे में। बात है, इस बारे में हमको कुछ पता नहीं है। राजा के मौत के पीछे सोनम का हाथ हो सकता है क्या? अभी कोई कंफर्म नहीं है इस बात में, सोनम बता पाएगी बातें। क्योंकि आप वहाँ शिलांग में थे, आप मतलब ढूंढ रहे थे, पूरे मामले को नजदीक से देख रहे थे, बोल रहे थे कि जब तक नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। उसके बाद राजा का सब मिला। चीजें सुनो, ये कुछ भी चीजें कंफर्म हम जब तक नहीं कर सकते हैं, तब तक सोनम को जो है 4 आरोपी के सामने खड़ा नहीं कर जाता है। तब तक सोनम कंफर्म करेगी उनको, तो सोनम को वो कंफर्म करेंगे कौन था कौन नहीं था, सारी चीजें मैच होगी। उसके बाद में पड़ेगा आरोपी कौन है। क्योंकि 3 सुपारी किलर भी पकड़ा गया है। मैं वही कह रहा हूँ, आपसे मैं सारी चीजें कंफर्म होगी हुई नहीं है। सोनम के मिलने के बाद सोनम की सारी कंफर्म करेगी चीजें, सारी चीजें। तो सोनम को जो है यहाँ पे लाया जाएगा, कंफर्म सारी चीज करी जाएगी, इसकी बात की आगे बात बढ़ेगी। लेकिन ये कौन है, ये पूरा मामला जो है आपके लिए एकदम चौंकाने वाला है कि सोनम अब मध्य प्रदेश में पाई गई है चेरापूंजी से। देखिए ये चीज अचंभा थोड़ी तो है, बाकी इसमें भी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते ज्यादा। अब मतलब आप सोनम के मुंह से सुनना चाहते हैं जो आगे का बात है, या पुलिस के मुंह से चाहते हैं आगे की बात क्या थी, क्या बात थी, सच्चाई क्या नहीं है। ये मीडिया के माध्यम से तो बहुत सी चीजें ऐसी निकल जाती है जो नहीं होना चाहिए। नहीं जी, इसीलिए आपको फोन किया है कि जो होना चाहिए वो ही हो, और आप ही बता पाओ कि आप प्रत्यक्ष रूप से पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, या पहले दिन से आप लगे हुए हैं, इसीलिए मतलब क्योंकि आपके घर की बहू है। तो वही कह रहा हूँ, हमारे घर की बहू है, हम लोग इसी के लिए कह रहे हैं। जब तक हमको कंफर्म नहीं होगा, जब तक हम लोग किसी भी बात में भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन कभी भी शक हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ शक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा है। क्योंकि आप लोग ये मान के चल रहे थे कि बांग्लादेश तक उसको अपहरण करके लेके गया होगा। अब बांग्लादेश के जगह मध्य प्रदेश में निकली वो 3 और भी लोग पकड़े गए हैं, जो कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले के पीछे गए जो है वो MP में पकड़ा गया, दोनों पकड़ा गए हैं। और सोनम जो है सोनम यूपी मिली है। दोनों में बहुत अंतर है, 1200 किलोमीटर अंतर, 1100-1200 किलोमीटर अंतर दोनों में है। वो दोनों अलग अलग जगह पकड़े गए। सोनम पकड़ी नहीं गई है, 3 बंदे पकड़े गए हैं। सोनम किनके साथ बात, सोनम का बात किनके साथ हुआ था? गोभी के साथ हुआ था। अच्छा, ओके। और उसके बाद आप ही लोगों ने कहा है कि मतलब आप लोग पुलिस को बताया, या आप लोगों ने सोनम को बताया? हम लोगों ने पुलिस को बताया है, सोनम रघुवंशी वहाँ पे है, आप वहाँ पे जाइए, उसको वहाँ पे उठाइए, उस सेफ तरीके से थाने पे ले जाइए, क्योंकि वहाँ पे जंगल में कुछ और मिलेगा नहीं वहाँ पे, इसलिए हमने पुलिस को फोन लगा बताया। मतलब एक तरीके से आपने पकड़वाया है? पकड़ाया नहीं, हमने उसको सेफ रखने के लिए भेजा, वहाँ सेफ रहेगी, कोई पुलिस पकड़ के नहीं ले गई उसको। तो आपको लगता है मतलब सोनम भी खतरे में है? सोनम डरी हुई थी, तो हम लोगों को पता है डरी हुई वहाँ पे है, तो सोनम को जंगल में कौन देखेगा? तो हमारा ऑप्शन एक ही था, पुलिस के थ्रू वहाँ पे हमने सोनम को सेफ जगह पर रखा गया है, थाने पे। गोविंद रघुवंशी उसको लेने के लिए निकल गया है और 12 बजे तक पहुंच जाएगा। बातचीत के दौरान आपने पूछा कि नहीं, जब मतलब इनिशियली आपने बातचीत हुआ तब ये पूछा गया कि नहीं कि सोनम मतलब मेघालय से मध्य प्रदेश कैसे पहुंची आके वापस? हेलो, पहले ठीक है, फोन आ रहा हूँ। আৰু সেয়া আছিল টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ। আৰু এনেদৰে সোনমক কেনেদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল ধাবাখনৰ পৰা, আৰক্ষী আহি কেনেদৰে লৈ গ'ল, সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে আমাৰ ইনপুট এডিটৰ নিলয় ভট্টাচাৰ্যক বিপিন ৰঘুবংশীয়ে। আমি সেই বিয়াখনৰ, সেই অভিশপ্ত বিয়াখনৰ কিছু ভিজুৱেলছ আগবঢ়াইছোঁ।
এনেদৰে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল 4 মাহৰ পূৰ্বৰ চিনাকি আছিল 4 মাহৰ পূৰ্বৰ চিনাকি তাৰ পিছত বিয়া হ'ল দুটা পৰিয়ালৰ সন্মতি দুয়োগৰাকী বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ সন্মতিত বিবাহ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছত এয়া হানিমুন ট্ৰেজেডি এক ভয়ংকৰ পৰিণাম য'ত নেকি অতি পৰিকল্পিতভাৱে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা হ'ল আৰু এই হত্যাকাণ্ডত খুদ পত্নীয়ে জড়িত থকাৰ এই বিস্ফোৰক তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে আৰু তাৰ মটিভ আছিল পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই এই হত্যাকাণ্ড আৰু এই হত্যাকাণ্ডক এক অপহৰণ আৰু ডকাইতিৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল এই গ্যাংটোৱে সুপাৰী কিলাৰ লগাই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ এই বিস্ফোৰক তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰায় 16 দিন ধৰি মেঘালয় আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অভিযান চলাইছিল কৰবাত সোনম ৰঘুবংশীকো হত্যা কৰা হৈছিল নেকি সেই সন্দেহত NDRF SDRFৰ দলে জোৰদাৰ অভিযান চলাইছিল মেঘালয় আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অভিযান চলাইছিল ঘন অৰণ্যৰ মাজত অভিযান চলাইছিল যিটো জলপ্ৰপাতৰ কাষত ৰাজাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল তাৰ বহু দূৰলৈকে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছিল কৰবাত থাকিব পাৰে নেকি সোনম আৰু তাৰ পিছত প্ৰথমে সন্দেহ কৰা হৈছিল যে কোনোবাই অপহৰণ কৰি লৈ যাব পাৰে কোনোবা ৰেকেটৰ কবলত পৰিব পাৰে কাৰণ ৰাজাৰ 10 লাখ টকীয়া হীৰাৰ আঙঠি নাছিল সোণৰ চেইন নাছিল গতিকে সেই দিশটোলৈ চাই এয়া এক অপহৰণ বা ডকাইতি কাণ্ড জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত মেঘালয় আৰক্ষীয়ে কেইবাটা ক্লু লাভ কৰিছিল মৃতদেহৰ 200 মিটাৰ নিলগত সোনমে পৰিধান কৰা এই কোলা ৰঙা ৰঙৰ তেজ লগা ৰেইনকোট উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত লোকেল টুৰিষ্ট গাইডৰ যিসমূহ ভাষ্য আছিল তাৰ পৰাই মেঘালয় আৰক্ষী স্পষ্ট হৈছিল যে এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আছিল আৰু য'ত জড়িত আছিল সোনম ৰঘুবংশী আৰু ভবা ধৰণেৰে সোনম ৰঘুবংশীক অৱশেষত নাটকীয়ভাৱে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই ধাবাখনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল লগতে হত্যাকাণ্ডত জড়িত সুপাৰী কিলাৰ সহ আন 3 অভিযুক্ত জালত পৰিছে এজন এতিয়াও পলাতক হৈ আছে সেই পলাতক অভিযুক্তৰ সন্ধানতো আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অভিযান চলাই আছে আৰু ডাঙৰ খবৰ যে পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ তথ্যও এই মুহূৰ্তত লাভ কৰা হৈছে ৰাজ কুশৱাহাৰ নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল সোনমৰ আৰু তাৰ পৰিণতিতে এই নাৰকীয় নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে বাছি ললে শিলং চেৰাপুঞ্জী আমি পুনৰ জনাইছো কেনেকৈ মেঘালয় আৰক্ষীয়ে সফলতা লাভ কৰিছিল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰা হৈছিল ৰাজা ৰঘুবংশীক হত্যা কৰাৰ দাখন মেঘালয়ৰ নাছিল হিয়া স্থানীয় দা নাছিল মেঘালয়ৰ দা নাছিল সেই কথা আৰক্ষী স্পষ্ট হৈছিল যি হত্যাকাণ্ডত দাখন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল হিয়া ঘটনাস্থলীত মৃতদেহৰ কাষত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ট্ৰেকিংলৈ যাওঁতে সোনম ৰঘুবংশীয়ে হোটেলৰ বেগত এৰি থৈ গৈছিল মংগলসূত্ৰ আৰু ভৰিৰ আঙঠি চেৰাপুঞ্জীত আন 3জন যুৱকৰ সৈতে দেখা হৈছিল সোনম আৰু ৰাজাক টুৰিষ্ট গাইডৰ কথাত স্পষ্ট হৈছিল সোনমৰে 3 যুৱকৰ ঘনিষ্ঠতাৰ কথা নিৰাপদে মেঘালয়ৰ পৰা ওলাই গৈছিল সোনম ৰঘুবংশী এই কথা মেঘালয় আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছিল আৰু অৱশেষত আমি পুনৰ জনাইছো নিশা 1 বজাত এক নাটকীয় পৰিস্থিতিত এখন ধাবাত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু সেই ধাবাৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰাই পৰিয়ালৰ সৈতে ভিডিঅ' কল কৰিছিল আৰু পৰিয়ালে আৰক্ষীক অৱগত কৰাত আৰক্ষীয়ে সোনমক ধাবাৰখনৰ পৰা লৈ যায় আৰু ইতিমধ্যে সোনমৰ পিতৃয়ে দাবী কৰিছে যে CBI তদন্ত হওক এই ঘটনাত মেঘালয় আৰক্ষীক জগৰীয়া কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নিজৰ কন্যাক নিৰ্দোষী সজাইছে বৰ্তমান পিতৃয়ে আৰু মুঠৰ ওপৰত এই ঘটনাক লৈ মুহূৰ্তত সমগ্ৰ দেশজুৰি ব্যাপক চাঞ্চল্য ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে অৱশেষত ৰহস্য ভেদ হৈছে আৰু বহু ৰহস্য পোহৰলৈ আহিবলৈ বাকী আছে কিন্তু প্ৰাথমিক যি ৰহস্য সেই ৰহস্য এই মুহূৰ্তত ভেদ হৈছে এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযান 17 দিনীয়া এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযান 2 জুনত ৰাজাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল যদিও সোনমৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল को तो सोच कर गया MP से भी कुछ लोग जो है पकड़ाए हैं ऐसा बता रहे हैं 2 लोग इंदौर से भी पकड़ाए हैं इसमें हाँ तो पुलिस इंटरनली पूरी छानबीन कर ही रही है क्योंकि ये मामला इतना हाईलाइट हो चुका है मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से बहुत हाईलाइट हो चुका था मामला तो ये मतलब पुलिस को तो इसकी जांच करनी थी अच्छा ये अरेंज मैरिज इनकी हुई थी तो क्या कुछ इनका आपको वहाँ पड़ोसी थे क्या इनका व्यवहार में क्या देखा? देखिए शादी तो बहुत धूमधाम से हुई थी
पूरा परिवार बहुत खुश था, राजा भी बहुत खुश था। मतलब ऐसा तो हम लोगों को लगा नहीं कि ये कुछ मतलब कोई विवाद हुआ हो या शादी कोई ज़बरदस्ती हुई हो। देखने तो से तो वैसे भी नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन ये लोग तो बहुत खुश थे, परिवार बहुत खुश था, बहुत तैयारियां कर रहा था शादी से पहले। सब अच्छे से शादी हुई है इन लोगों की। सोनम का क्या कुछ अफेयर या कुछ ऐसा कुछ? नहीं, देखिए इसकी तो जानकारी है नहीं हमको। और अपन मतलब शुरू से केस हुआ है ना, तो कई लोग लड़की को लेकर के भी वो बातें कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब तक तथ्य सामने नहीं आएंगे अपन किसी भी महिला बेटी के बारे में ऐसी बातें करना सही नहीं है। तो हम लोगों ने ऐसी बातें करी नहीं। अब सच्चाई तो पुलिस निकालेगी। अगर लड़की दोषी है तो उसको बराबर सजा भी देगी, और सब लोग यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जाँच हो जाए पुलिस के माध्यम से, CBI के माध्यम से। पुष्पा जी, ये जाने का प्लान किसका था? परिवार वालों की जानकारी के हिसाब से तो सोनम ने ही सारे टिकट्स वगैरह ये सब किए थे, और ऐसा बताया जा रहा है कि सोनम ने ही टिकट किए हैं। लेकिन फिर ये लोग जहाँ गैंगटॉक गए, गुवाहाटी गए थे, वहाँ से फिर किसी ने वाया बोला था कि आप उधर चले आओ, वो घूमने की जगह अच्छी है। ऐसा जानकारी मेरे को परिवार के माध्यम से मिली। अभी इनको सोनम को भी गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ जानकारी? हाँ, सोनम को सुबह वो ढाबे में खाना वाना खा रही थी, वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि वीडियो कॉलिंग पर शायद गोविंद से बात हुआ था, परिवार से बात हुआ है। उसके बाद गोविंद ने पुलिस को जानकारी दी है, और क्योंकि कहीं ना कहीं भाई भी परेशान हो रहा है ना, इतने दिनों से वो वहाँ पर डटा हुआ है, तो हो सकता है कुछ इमोशनल भी हो गए होंगे, यार मेरा भाई परेशान हो रहा है, ऐसा करके मैं संपर्क करने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत पोलाइट तरीके से उसने संपर्क किया है, मतलब किसी ज़्यादा प्रेशर में ऐसा लग नहीं रहा है कि वो संपर्क हुआ है। तो गोविंद ने शायद पुलिस को सूचना दी है, और पुलिस ने उसको वहाँ से गिरफ्तार किया है, खाना खाते हुए ढाबे से, गाजीपुर से। अभी क्या स्थिति देखते हैं आप पूरे इस विषय को कि मतलब इतने लंबे समय बाद जो खुलासा हुआ और इस तरह से खुलासा होगा? देखिए केस तो मतलब बहुत टिपिकल हो गया है। मतलब ये जो भी ट्रायंगल हुआ है बहुत खतरनाक तरीके से चीज़ें चल रही और उलझ गए। मतलब जो लोग कुछ और सोच रहे थे, अभी पब्लिक कुछ और सोचने लगी है। मतलब अलग अलग एंगल्स आ रहे हैं सामने, तो पब्लिक का मतलब सोचना भी एकदम जायज़ है। सब घबरा गए कि ये क्या हो गया, एकदम से क्या चीज़ है, मतलब कि ऐसा हुआ। एक बेचारा एक मासूम बेटा इन्होंने खो दिया है, बहुत सीधा बच्चा था वो। तो मतलब बहुत हालत ख़राब है सोचने में, और गुस्सा भी आ रहा है कि यार ऐसा हो गया करके। अच्छा, कुछ विवाद इनके बीच में, सोनम और राजा के बीच में कुछ ऐसा विवाद या कुछ? नहीं, वैसा कोई विवाद तो हमारे सामने आया ही नहीं ना, क्योंकि 11 तारीख को ही शादी हुई है। हम उससे पहले तो जानते ही नहीं थे। परिवार में बस ऐसा कभी हुआ नहीं, कुछ हंगामा होता तो घर पे हमको मालूम पड़ता है, या जितना भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ विवाद तो था नहीं मेरे हिसाब से। सोनम सास से भी बात करी थी, वीडियो वायरल हुआ था, ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें बोली 11 से ऊपर चढ़ के चक्कर में तो पास नहीं तोड़ सकती, ऐसी बातें भी कर रही थी। देखिए मम्मी तो देखिए कितने लाड़ प्यार से बात कर रही थी, मतलब हक से बात कर रही थी कि मेरी बहू है। तो मम्मी तो बहुत पॉजिटिव होकर के बात कर रही थी। राजा से भी बहुत पॉजिटिव बात हुई है। ऐसा लग नहीं रहा उस ऑडियो को सुन करके कि भाई मतलब कि कुछ गड़बड़ है करके। लगता है साहब, इसमें क्या नया पहचान है? वो तो देखिए पुलिस ही बताएगी क्या इसमें क्या मैटर है। तो अगर আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, সোনমে কাৰোবালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল লোকেশ্যন। চেৰাপুঞ্জীত থকাৰ সময়ত সোনমে প্ৰেৰণ কৰিছিল লোকেশ্যন। মেঘালয় আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সোনমক অতি শীঘ্ৰে জিম্মাত ল'ব বুলি জানিব পৰা হৈছে। মেঘালয় আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'ব সোনমক। কাৰোবালৈ লোকেশ্যন প্ৰেৰণ কৰাৰ তথ্যও এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে। চেৰাপুঞ্জীত থকাৰ সময়ছোৱাত সোনমে প্ৰেৰণ কৰিছিল লোকেশ্যন। অতি জনপ্ৰিয় ডাবল ডেকাৰ ব্ৰিজ চাবলৈ গৈছিল, আৰু তেনে সময়তেই কিছু ৰহস্যজনক গতিবিধি ধৰাত পেলাইছিল। ৰহস্যজনক গতিবিধি সন্মুখলৈ আহিছিল, যি সময়ত টুৰিষ্ট গাইডগৰাকীৰ সেই কথাত স্পষ্ট হৈ পৰিছিল। তিনিগৰাকী যুৱকক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল দুয়োৰে সৈতে, আৰু সেই তিনি যুৱকেই আছিল নেকি ঘাতক, এনেধৰণৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে। আৰু লোকেশ্যন প্ৰেৰণ কৰাৰ দৰে তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে। কাক প্ৰেৰণ কৰিছিল লোকেশ্যন, আৰক্ষী তদন্তত সেই কথাও অতি শীঘ্ৰেই পোহৰলৈ আহিব, কাৰণ মেঘালয় আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'ব সোনম ৰঘুবংশীক। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। আজি অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশন। এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিশেষ অধিৱেশন। এই বিশেষ অধিৱেশনত সুধা কণ্ঠক স্মৰণ কৰিব সদনে। ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে
এই বিশেষ এদিনীয়া অধিৱেশন এই বিশেষ অধিৱেশনত সুধাকান্তক স্মৰণ কৰিব সদনে ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ নাম সলনি কৰি সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামেৰে হ'ব নামাকৰণ তাৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব সুধাকান্তৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন সন্দৰ্ভতো হ'ব আলোচনা ইতিমধ্যে কেবিনেটত এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে বিৰোধী কংগ্ৰেছেও চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে বিশেষ অধিৱেশনত জলজীৱন মিছন গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ লগতে আন কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এদিনীয়া এই বিশেষ অধিৱেশনত নাথাকিব কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো এদিনীয়া বিশেষ অধিৱেশনৰ ভাৰতৰ এই আক্ৰমণত ভাৰতীয় নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা ভৰ প্ৰস্তুতাৰ কথা প্ৰতীয়মান কৰে মাননীয় সদস্যগণ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ অসাধাৰণ সফলতাৰ বাবে মই সদনৰ হৈ ভাৰতীয় সেনাবাহিনী আৰু ভাৰত চৰকাৰলৈ আমাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ এই অসাধাৰণ সফলতাই সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ অটল নিষ্ঠা সাহসিকতা আৰু কৌশল দক্ষতা প্ৰতিফলন ঘটায় এই অভিযানৰ সফলতা হৈছে দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব তথা নাগৰিকৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से उसमें ये मीडिया में चल रहा है तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया सिलेंडर उसने नहीं किया है ये बात झूठ है पुलिस तो और अभी सोनम जो है सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने राजी नहीं बात को भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये तो ये शायद जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा क्योंकि देखिए अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने राजी नहीं इस बात को अच्छा इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में तो ये जो इंदौर में अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचेंगे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी ये भी पता नहीं हमारे को तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है दोनों की पसंद से शादी की गई है दोनों खुश थे शादी में भैया कितना समय 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने दोनों परिवार को खुश थे दोनों की मर्जी से शादी करेगी और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है तो सोनम और राजा उतने दुखी है अच्छा शिवांग जाने की प्लानिंग किसके द्वारा की दोनों की प्लानिंग थी इसके अंदर घूमने की और दोनों अपनी मर्जी से गए क्या लगता है कि कभी कोई घटना दुर्घटना या विवाह की कोई ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद इस तरह की देखिए शादी के बाद में 9 दिन का समय था 9 दिन में सारी बातें क्लियर होनी चाहिए तो अभी 9 दिन में तो हमारे साथ में कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं हमारे को तो सोनम राजा के बीच में झगड़े हुए होंगे इसलिए हम लोग बोल सकते इस बारे में नहीं इसमें कुछ और कहानी हो सकती है देखिए हो सकता है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकता है सोनम का भी और ये भी कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल अभी तो शिलोंग पुलिस तो वहाँ पे शिलोंग पुलिस के जो अपने मेघालय सीएम साहब जो है वो तो ये भी कहते थे तो 24 घंटे पुलिस काम कर रही है बाकी 24 घंटे पुलिस काम करते हमको कहीं दिखी नहीं है हम लोग जब वहाँ पे एसपी साहब को फ़ोन लगाते थे विवेक सिंह जी को तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं थे वो करीब हमने उनसे 4 दिन से बात भी नहीं करी अभी तक कंटिन्यू फ़ोन लगाते थे उन लोगों को उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था कह रहा छुट्टी पे तो हम लोग को इसमें थोड़ा डाउट है तो छुट्टी पे थोड़ा केस में सब छुट्टी पे चल रहा है कभी तो इसलिए हम लोग उन पर भरोसा कर सकते नहीं फिलहाल अभी जब तक सोनम मुझसे कबूल निकल ले तो भैया ये बात हुई क्या वो कैसे पहुंची गाजीपुर तक क्योंकि शिलोंग से तो बहुत दूर है अभी इस बारे में कोई आइडिया हमको नहीं है हमको संपर्क भी नहीं इस बारे में कुछ भी नहीं है और सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है तो बिल्कुल अकेले मिली है कोई साथ में मिला है कुछ बोल सकते नहीं है क्योंकि हम मेरी बातचीत तो हो नहीं पाई है गोविंद ने मुझे इतना बताया था सारी बात आपको मैंने बता दी है अब आप आगे क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश पुलिस जांच करे शिलोंग पुलिस जांच करे हम चाहते हैं इसके अंदर मध्य प्रदेश पुलिस जो है इसमें जांच करे और सीबीआई जांच बैठेगी कभी तो इसमें बहुत से खुलासे होंगे फिलहाल अभी भी आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच हाँ क्योंकि राजा के पीछे कौन कौन है कौन सी गैंग है अभी तो 3 लोगों के नाम खुले हैं हो सकता है सीबीआई जांच बैठने पे कुछ और भी राज खुल जाए इसके अंदर शिलोंग पुलिस के भी खुल जाएगा आज
कौन मिला कौन नहीं मिला है, तो इसके लिए अभी हम लोग चाहते हैं सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होंगे इसके अंदर। अभी अच्छा, राजा की कोई किसी से किसी प्रकार की राजा की कोई दुश्मनी नहीं, दोनों में किसी से दुश्मनी नहीं है, और राजा के ना कभी तक कोई झगड़े हुए हैं ना राजा पे कोई पुलिस केस है, इसलिए हम लोग मानते हैं राजा की कोई दुश्मनी इसमें है नहीं। सुना है शिलोंग पुलिस यहाँ पे आई है। मतलब शिलोंग पुलिस को तो पहले से इन्होंने शायद केस सॉल्व कर लिया था और बता नहीं रहे थे ये, क्योंकि हम लोगों से अभी तक कोई बातें शेयर करी नहीं पुलिस ने अभी तक में, क्योंकि हम जब तक फ़ोन लगाते रहिए हमारा फ़ोन को उठा नहीं उठाया नहीं यहाँ पे, और कल के दिन भी हम लोग फ़ोन लगाते रहिए वहाँ पे एंथोनी सर जो है वहाँ पे उनसे फ़ोन लगाते रहिए रिपोर्ट के लिए, उन्हें और फ़ोन उठाया नहीं किसी ने भी। कल पुलिस से पूछा भी था हम लोगों ने तो यहाँ पे क्या सर्च चल रहा है, तो उन लोगों ने बताया नहीं हम कुछ हमारे को, बोले बस बताते हैं, अभी हम लोग थाने बैठे हुए, तो हम लोग कल वहाँ पे दिन भर उसी में लगे रहते बस। विनय भाई, क्या लगता है शिलोंग पुलिस सोनम को फंसाने की साजिश कर रही है या सोनम ने मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, तो शिलोंग पुलिस इनको फंसाने की साजिश कर सकती है, बाकी सारी बातें क्लियर सोनम ही कर पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या लगता है कभी सोनम का इस केस में इन्वॉल्वमेंट होता है तो कैसे उसे देखते हैं? देखिए सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता कभी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सज़ा उसको मिलना चाहिए। फिर आपका नाम? मेरा नाम विपिन रघुवंशी है, मैं राजा रघुवंशी का भाई हूँ। राजा रघुवंशीर भातৃ তেওঁ নিজেও মেঘালয়ত আহিছিল, মেঘালয়ত আহি তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত মেঘালয় আৰক্ষীৰ পৰা বুজ লৈছিল, আৰু ৰাজা ৰঘুবংশীয়ে উল্লেখ কৰিছে কেনেদৰে সোনমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, তিনি ঘাতকক বা তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গতিকে সোনমে এতিয়াও মুখ খোলা নাই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত। সোনমে মুখ খোলালৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে, পৰিয়ালৰ লোকে অপেক্ষা কৰিছে, আৰু এই মুহূৰ্তত কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে ৰাজা ৰঘুবংশীৰ সৈতে, কাৰণ অত্যন্ত সৰল প্ৰকৃতিৰ এজন যুৱক ৰাজা ৰঘুবংশী কি কাৰণত হত্যা কৰা হ'ল এতিয়াও পৰিয়ালৰ লোকে মানি ল'ব পৰা নাই। সমগ্ৰ বিষয়টো অপেক্ষা কৰিছে সোনমে মুখ খোলালৈ। ইয়াৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ চীনত আহিছে আন এজন যুৱকৰ নাম ৰাজ কুশৱাহাৰ, আৰু সেই ৰাজ কুশৱাহাৰৰ বাবেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল নেকি, সকলো কথা হয়তো আৰক্ষীৰ তদন্তত অতি শীঘ্ৰেই পোহৰলৈ আহিব। মেঘালয় আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লোৱাৰ পিছত আৰু বহুখিনি কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব, কাৰণ মেঘালয় আৰক্ষীৰ ওপৰত গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছে যে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে মনে সজা কাহিনীৰে সোনমক জগৰীয়া কৰিছে। কাৰণ ইতিমধ্যে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে যিসমূহ তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰিছিল সেই তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত বাৰে বাৰে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে কৈছে যে ইয়াত কোনো স্থানীয় লোকৰ হাত নাই। মেঘালয়ক বদনাম কৰা হৈছে, মেঘালয়ক কলংকৰ দাগ শুনা হৈছে ক'ৰবাত কেনেবাকৈ, আৰু সেই কলংকৰ দাগ ইতিমধ্যে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে মোচন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে যিখন দা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেই দাখন মেঘালয়ৰ নাছিল, অৰ্থাৎ স্থানীয় দা নাছিল। হত্যাকাণ্ডত এখন দা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেই দাখন মেঘালয়ৰ নাছিল, আৰু লগতে তিনিজন যুৱকৰ যি হঠাৎ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল সেই কথা টুৰিষ্ট গাইডৰ ভাষ্যত পোহৰলৈ আহিছিল, আৰু তাৰ পিছতে এই এটা বৃহৎ সফলতা, আৰু নাটকীয়ভাৱে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজীপুৰৰ এখন ধাবাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল সোনমক। अगर वो साथ देती तो वही पकड़ लेती जो भी था उसको। अब जो भी जांच हो वो होए, मैं अब कुछ नहीं जानू, बस जांच करो। CC কেমেৰাৰ ভিজুৱেল, সমান্তৰালকৈ দাখন, সমান্তৰালকৈ টুৰিষ্ট গাইডৰ ভাষ্য, আৰু সেই সকলোখিনি মিলাই মেঘালয় আৰক্ষীয়ে এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু প্ৰশ্ন হয় যে কেনেদৰে সুকলমে মেঘালয়ৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল এইসকল অভিযুক্ত। তিনি অভিযুক্তক ইন্দোৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আনহাতে সোনমক গাজীপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে। এই অভিশপ্ত বিয়াৰ পাছতে হনিমুনলৈ আহি এই নাৰকীয় কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সোনম ৰঘুবংশীয়ে। সোনম ৰঘুবংশীৰ এই মানসিকতাক লৈ এই মুহূৰ্তত সকলো কঁপি উঠিছে, সকলোৰে মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া মেঘালয় আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'ব, মেঘালয় আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লোৱাৰ পিছত আৰু বহুখিনি তথ্য সন্মুখলৈ আহিব। 22 মেত শ্বিলঙলৈ আহিছিল
প্ৰথমে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল গুৱাহাটীত মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন কৰিছিল মা কামাখ্যা দৰ্শন কৰাৰ পিছত শিলঙলৈ গৈছিল আৰু শিলঙত গৈ মেঘালয়ৰ অতি জনপ্ৰিয় ডাবল ডেকাৰ ব্ৰিজ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ গৈছিল স্কুটি লৈ গৈছিল স্কুটি লৈ হঠাৎ এনেধৰণৰ এক নাটকীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল 23 মেৰ পৰা হঠাৎ সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল সোণম আৰু ৰাজা 2 জুনত এই নিৰন্তৰ অভিযান চলাই মেঘালয় আৰক্ষীয়ে এটা জলপ্ৰপাতত উৱলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছিল ৰাজা ৰঘুবংশীৰ মৃতদেহ তাৰ 200 মিটাৰ নিলগত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল তেজ লগা ৰেইনকোট যি সিসি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলত প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছিল সেই ৰেইনকোটটো পৰিধান কৰিছিল সোণম ৰঘুবংশীয়ে আৰু এনেদৰে বিভিন্ন তথ্যৰ পম খেদি মেঘালয় আৰক্ষী অভিযান চলাই অৱশেষত এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বিগত 7টা দিনৰ বৃহৎ অগ্ৰগতি এই অভিযান এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰু নাটকীয় ৰূপত আমি পুনৰ জনাইছো উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজীপুৰৰ পৰা সোণম ৰঘুবংশীক এখন ধাবাত নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়ত নিশা প্ৰায় 2 বজাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এই নিশংস হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত প্ৰতিটো ডেভেলপমেণ্ট প্ৰতিটো আপডেট আমি জনাই যাম আমাৰ পৰৱৰ্তী বুলেটিনসমূহত সময় হ'ল লাইভ আৱাৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ